Public speaking, how it has changed through social media and digital platforms. पहले जिस तरह से पब्लिक स्पीकिंग होती थी और अब जो चेंजेस आए हैं वो क्या चेंजेस आप देख पा रहे हो? जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग अगर हम बोले तो पहले स्टेज पे होता था, माइक पे खड़े रहो, स्टेज पे बोलो. नाउ इट इज दिस रेक्टेंगल स्क्रीन. चाहे फोन ले लो, चाहे लैपटॉप ले लो, व्हेन यू टॉकिंग टू द कैमरा, यू टॉकिंग टू पब्लिक. ऑफ कोर्स हमें ऐसा सिखाया गया है कि दूसरों के लिए जीना है, दूसरों का करना है, एडजस्ट कर लेना है, सब सहन कर लेना है. ये कंडीशनिंग गलत है. तो लोग यही सोचते हैं कि अगर मैं सीईओ बन जाऊंगा या प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो सक्सेसफुल होऊंगा. Exactly. लेकिन अगर उन चैलेंजेस को पार कर लिए तो भी तो वो एक सक्सेस की परिभाषा है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जैसे आपने कहा छोटी छोटी विंस जो हमारे होते हैं कि आज नहीं मन कर रहा था मुझे जॉब पे जाने, पर मैं रेडी हुआ, मैं गया, मैंने काम किया, मैंने बेस्ट दिया. That's a success. Motivation is a myth. बिल्कुल भी there is nothing which is called motivation. There is only one thing which is called action. Right. जो आप डिसिप्लिन बोलते हो या रेगुलर एक्शन बोलते हो. कोविड के टाइम पे देयर वर ऑनलाइन सेशंस. तो जो गांव में जो बच्चे जो खेत में काम करते थे वो पेड़ पे चढ़ के फोन का नेटवर्क पकड़ के भी मेरा सेशन सुनते थे. वो ऐसा बोलते थे कि मैम हमें कब मौका मिलेगा, अगर हम ये मौका जाने देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे. मंत्र है बेटी बचाओ. बेटी तब बचेगी जब बेटे को ठीक से सिखाओ. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ क्विक. दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन ग्रेटर देन मोटिवेशन. मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग मोटिवेशन की बात करते हैं विच इज़ वेरी टेम्पररी, बट वॉट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज़ दैट वी शुड बी डिसिप्लिन्ड इन आवर ऑब्जेक्टिव. आज मैं ऐसे ही गेस्ट को बुलाया हूँ जो कि इस बात की उदाहरण है. इन्होंने अपने काम से बहुत लोगों को प्रभावित किया है, बहुत लोगों को मोटिवेट किया है. इनका नाम है मेघना सोनी. ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच हैं जिन्होंने बहुत साल से ये काम कर रहे हैं. कुछ 10 साल से ये इस काम में जुड़े हुए हैं. अगर मैं आपको ओवरऑल इनके जर्नी के बारे में बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर हम एक पॉडकास्ट के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी यूथ इंस्पायर हो इनके बात सुन के. सो ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए मैं ये पॉडकास्ट शुरू करना चाहूँगा. सो वेलकम मेघना. हाउ आर यू? वेरी वेल. So it is a pleasure to have you because it was a very strong motive that I wanted a person like you who has worked so hard in this field, because what is really important is to have a vision and work on that vision for a long time, and you are able to do it because it is really difficult. I can understand that. So please tell me about your journey, how you started with this work. If I can tell you this profession which I am in right now, public speaking or mentoring or personal development, I always say that I did not choose that, it chose me. Because I was from a very very different field. I was from a creative background, did my fine arts and graphic designing, then transitioned into automobiles, worked almost 7-8 years in automobiles, sales and everything. And then suddenly in one of the automobile training, one of the trainer did tell me, I think your communication is very good, you should try into training and development. And that is exactly what stuck to me. I think it's your calling. When your work is like calling you, or the profession which you meant to be. So I believe that this work which I do, or this profession, it involves a lot of giving back to the society. A lot of fulfillment. And hence I tell it that it was my calling. So what challenges you have faced while doing this work? Challenges per se, because suddenly people are not going to consider you as an expert. So the start, it's not like if you are looking for a monetary reward, then suddenly you cannot gain it. Over a period of time, a lot of experience, your experience with coaching people, mentoring people, training people will put you in a position where you know that you are actually impacting lives. And that is when the monetary reward comes in. So that is a challenge, so that sometimes people have to do or balance multiple jobs, because this is your passion project, but something to run the house and to earn a living. So I think that is a challenging part, but otherwise it's the most gratifying profession ever. So Meghna, usually it so happens that traditionally we are facing a lot of issues socially, and we always
have issues with that, but nobody thinks of going ahead with some kind of change. And now if I ask you, how do you think that you can be different? Because there are many personality coaches earlier also. They have worked for a long time and did their bit. But how do you think that your work can be different? What your vision, your point of view is different from the people who were there in this vicinity? How you are different? See, I believe every individual has a different perspective of understanding other person. Mm-hmm. So, for example, if I am helping somebody into communication training, the points and the key points that I might observe and understand that the person is lacking might be different than another person's perspective, right? So that is a point which is always unique. And I have always been an observer. I observe people a lot in terms of, you know, everything, their body language, the communication, the things they say or they don't say. So I know the loopholes and I know where and what is going to impact. So I think I call it my forte or my niche also. I'm not comparing myself with any other trainer saying that they might not be doing that, but that is how it has helped me in my work as of now. तो आपको ऐसी क्या चीज़ें स्ट्राइक करती है जो पहले होती आई है और जिस पे मतलब हमेशा से ही यू हैड अ फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी, एज इन यू फेल्ट कि इन चीज़ों में तो चेंज आना चाहिए पर कोई इस पे वर्क क्यों नहीं कर रहा? ऐसे कौन से कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा हर्टफुल फील होता है और यू वांट कि मेरे काम, आपके काम से इस चीज़ में बदलाव आ सकता हो? बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसे, जैसे कि फर्स्ट एंड मेन पॉइंट इज कि पर्सनल डेवलपमेंट जब हम देते हैं, इट इज़ अ टॉपिक जब वो इंसान सोचता है कि भाई मेरा काम सेट हो जाए, अच्छी सी जॉब सेट हो जाए, घर में ठीक से पैसा आ गया है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ सेट हो गया, उसके बाद मैं अपना पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचूंगा, राइट? जो मास्लोस पिरामिड जो हम सोचते हैं कि ऑल द बेसिक नीड्स जो हो जाती है उसके बाद हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचते हैं। वो बात मुझे बहुत खटकती है कि अगर वो चीज आप पहले ही सोच लो, पर्सनल डेवलपमेंट अगर आप पहले ही सोच लो, तो आप अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हो, आप हर एक चीज बेटर कर सकते हो, डबल हो जाती है। तो जो रोटी कपड़ा मकान, जो शेल्टर और जो बेसिक नीड है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सारी चीजें टेकन केयर हो जाती है व्हेन यू वर्क ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट एट द लास्ट कि भाई मैं सब कुछ कर लूंगा उसके बाद में अपने। तो वो टाइम कब आता है जब हम कोई इंसान 50-60 इयर्स का हो जाता है, तब एक माइंडसेट भी रिजिड हो जाती है कि मैंने तो इतनी दुनिया देख ली है। जब तुम्हारा माइंड बहुत रिसेप्टिव है, तब तुम बाकी सारे जो लाइफ की हसल है, स्ट्रगल है या रैट रेस, उसमें पड़ जाते हो एक्चुअली। सो आई फील कि इफ द वेरी बेस एंड स्कूल के जो, जैसे हम मैथमेटिक्स सिखाते, इंग्लिश सिखाते, जो बेस है कि भाई ये तो सीखना ही पड़ेगा, अल्फाबेट्स तो सीखने ही पड़ेंगे टू इवन गो टू द कॉलेज, राइट? सेम वुड बी लाइफ स्किल्स, कि ये स्किल्स तो आनी ही चाहिए टू ग्रेजुएट। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। एग्जैक्टली। So that, and also making these skills very accessible to everybody. ऐसा नहीं कि only the rich can afford. वो रूरल पार्ट में भी बहुत ही अफोर्डेबल होने चाहिए, क्योंकि फिर इमेजिन कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी बेटर हो जाएगी, राइट? They'll get better job, they'll get better opportunities, the entire economy of the country gets better. So I feel taking a personal development in a very different perspective कि ये खाली टाइम पास या एक्स्ट्रा की चीज नहीं है, ये बेसिक, इट इज द बेसिक, एंड इट इज एक्चुअली, इट विल शेप द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, इट विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलवेज लाइक टेकन इनटू कंसीडरेशन दैट इट मैटर्स द मोस्ट। जो टेक्निकल स्किल्स है, जो हार्ड स्किल्स है, हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये भी उतनी ही। तो एजुकेशन किस हद तक इस चीज को रोक रहा है? इंडिया में जिस तरह का करिकुलम है, जिस तरह की परवरिश माँ बाप बच्चों को कराते हैं और जो स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, वो कितनी बाधा बन रही है इस चीज, इस काम में? See now, because there are a lot of schools with an IB background, right. तो जो इंटरनेशनल जो करिकुलम है उसमें ये